Success Mantra. We shape future. Good afternoon, everyone. My name is Abhay Singh, and I welcome you all to today's video analysis of The Hindu. So today's 24th of May 2024. We'll begin with the first and the most important headline for the day. And the first headline for the day is Karnataka renews call to cancel Prajwal's diplomatic passport. बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, आप सब लोगों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो अलायंस पार्टी है, एक एमपी थे प्रज्वल रेवन्ना हु इज आल्सो हु इज accused in various harassment cases. He fled to a foreign country using a diplomatic passport. तो व्हाट नाउ, सो बेसिकली अब ये चीज उठ के आ रही है कि इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसे हम लोग कैंसिल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, प्रज्वल रेवन्ना को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम लोग इन्हें इंडिया लेकर के वापस आएंगे. नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. So Mr. Devgowda has given a statement that if Prajwal Ravanna will not return to India within a stipulated time, then he will take severe actions, or Prajwal Ravanna has to face the fury of Mr. Devgowda. Mr. Devgowda is the ex-prime minister of the Mr. Devgowda is the former prime minister of India. Now, the second important news for the day. First one is this. Now moving on to the second important news for the day. Heads of Iran allied militant group meet in Tehran, discuss Gaza political situation. Leaders of the Iran-led so-called axis of resistance, including Hamas Ismail Haniyeh, discussed the war in Gaza during a meeting in Tehran on the sidelines of President Ibrahim Raisi's funeral, state media reported on Thursday. So various Iran elite militant groups have recently met in Tehran. तो ये सारे के सारे जो ईरान के एलीट मिलिटेंट ग्रुप है, ये लोग अभी तेहरान में मिले. क्यों? तेहरान में भी क्या था, जो ईरान के प्रेसिडेंट थे मिस्टर इब्राहिम रईसी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई है. So now what is the important thing, that जो ईरान के जितने भी एलीट मिलिटेंट ग्रुप हैं वो लोग तेहरान में मिले. उन लोगों ने बेसिकली क्या डिस्कस किया, जो गाजा में वॉर चल रहा है उसे हमें आगे अब कैसे लेकर के जाना, आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है. In that particular meeting, all these agendas were discussed, that what are the things and how we have to move into, how we have to see things in Gaza, क्योंकि गाजा में बहुत सारी चीजें इस समय ऊपर नीचे हो रही हैं. और इब्राहिम रईसी की इसी बीच में जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ भी हो गई है. और हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनकर हैज रिसेंटली विजिटेड ईरान. अब वो ईरान में उनकी विजिट क्यों हुई थी, जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है, बेसिकली जो एक मेमोरियल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के मिस्टर इब्राहिम रईसी, उनकी याद में बेसिकली उनकी मेमोरी में एक प्रेयर मीट ऑर्गेनाइज की गई थी. बेसिकली उसमें गए थे जगदीप धनकर. ठीक है ना, मूविंग ऑन. अब इस न्यूज में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि जो ये हमस का ग्रुप है हमस इस्माइल हनिया, इसको आप लोगों को याद रखना है. इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी रिलेवेंट नहीं है. अब हम सब लोगों को ये तो पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या, जिनकी भी डेथ हुई, इब्राहिम रईसी. ठीक है ना, मूविंग ऑन. BJP will be wiped out from all 27 Lok Sabha seats in Purvanchal. This is a political news. BJP has crossed 300 seats in 5 phases. This is another political news. Brahmins being harassed under Yogi government. Political news. BJP lodges police complaint against edited Ami video. This is another political news. So we don't have to pay much heed to these particular topics which are related to, basically related to politics. As of now, these topics are totally irrelevant for us. We don't have to discuss these topics because they are not important for any examinations, no matter what. Because इन एग्जाम से या इन टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन टॉपिक से जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं. इसीलिए हम इन सारे टॉपिक्स पे स्किप करेंगे. नाउ मूविंग ऑन. Amid backlash or Haryana government's initiative, opponents also told them back to on coming to power. Political news. Corruption not part of equation for Kurukshetra voters. Political news.
South Delhi's urban will see heavy rain to continue in Kerala, 3 district put on orange alert. तो हम लोगों को पता है कि मानसून की एंट्री जो हो रही है बेसिकली वो स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, तो इस वजह से क्या हुआ है कि केरला के कुछ 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया गया, ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया गया, ठीक है ना। अभी जो हम लोग जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, उस स्टेटमेंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एच डी देवेगौड़ा, उनका क्या स्टेटमेंट था, इफ यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर मी कम बैक। यानी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया मिस्टर देवगौड़ा ने, ये स्टेटमेंट किसके लिए, जो उनके ग्रैंडसन है मिस्टर प्रज्वल रेवन्ना, हु इज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन एज अ काइंड ऑफ वार्निंग टू मिस्टर रेवन्ना बिकॉज मिस्टर देवगौड़ा वांट्स हिम टू रिटर्न टू आवर कंट्री so that actual things can happen. Actual thing means that अब जो आगे की चीजें होने वाली हैं मिस्टर प्रज्वल रेवन्ना के वापस आने पर ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि he is the prime accused in that particular case. That's why his presence is very much needed in India. Now he is not coming back to India. So Mr. Devgowda, who is also the ex or the former Prime Minister of India, has requested him, not requested him, he has basically given a statement that if you have any respect for me, come back. So this is the kind of warning for Mr. Prajwal Revanna. Now moving on. Now this is very important news. With 10-year facility ending, Andhra Pradesh students may not get 15% quota in Telangana medical colleges. Excuse me. Hundreds of Andhra Pradesh students will not get 15% quota in Telangana medical colleges and other higher educational institutes from 2025-26 academic year, as the 10-year facility that was provided in the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 will come to an end in 2024. That's why the students will not get 15% quota in Telangana medical colleges because there was a 10-year period. अब ये 10-year period क्या है और इसका भी इंपॉर्टेंस इतना क्यों हो गया, अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। The act which was enacted during the bifurcation of Andhra Pradesh has become a blessing in disguise, as Andhra Pradesh students were allowed to join all medical colleges of Telangana. So in 2014 there was a bifurcation of two states, Andhra Pradesh and Telangana. अब जब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था बेसिकली, तो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश वर अलाउड टू ज्वाइन मेडिकल कॉलेजेस इन तेलंगाना। अब वहां पे क्या हुआ कि जब वो लोग इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो 2014 से लेकर के 2024 तक का जो टाइम था, ठीक है, ये जो 2014 से लेकर के 2024 तक का जो टाइम था बेसिकली, इसमें क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स थे, आंध्र प्रदेश के जितने मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो अगर तेलंगाना में एडमिशन लेते उन्हें क्या होता बेसिकली 15% का कोटा मिलता था। अब क्या हो रहा है कि ये जो 10 ईयर का लॉक इन पीरियड था 2014 से लेकर के 2024 तक का, ये लॉक इन पीरियड अब खत्म हो रहा है। लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है मतलब ये उस टाइम पे डिसाइड हुआ था कि अगले एक और चीज डिसाइड हुई थी कि 2014 से लेकर के 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल होगी वो कॉमन कैपिटल होगी, मतलब हैदराबाद ही दोनों पर्टिकुलर स्टेट्स की कैपिटल होगी। अब ये जब 10 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये 10 ईयर की फैसिलिटी दी गई थी स्टूडेंट्स को, आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स को, वो भी खत्म। अब आप लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के, वी हैव टू कीप दोज थिंग्स इन योर माइंड। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? दैट this particular 15% quota was given to the students of Andhra Pradesh. अब ये जो इनको ये रिजर्वेशन या जो 15% कोटा मिला था ये किस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से मिला था, तो ये हम एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ठीक है, जो ये पर्टिकुलर एक्ट था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, इस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से इन लोगों को 15% का कोटा जो था वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स को मिला था जो तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस होंगे, ठीक है। अब आपके लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला हो गया कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट द स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दे विल गेट 15% कोटा इन द कॉलेजेस ऑफ तेलंगाना। This particular facility was given by the virtue of Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. This particular facility of 15% quota was given to the students by the virtue of
by the virtue of Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. Now, moving on. Now, this news is very important because हम लोगों ने ना इस पर्टिकुलर न्यूज को कहाँ से देखना स्टार्ट किया था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। 4-5 दिन पहले हम लोगों ने एक न्यूज कवर की थी, एडिटोरियल पार्ट में हमने पढ़ा था ये चीज कि कैसे मतलब जो हायर एजुकेशन उसे कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बेसिकली। अब उसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, केरला गवर्नर ट्राइंग टू सैफ्रनाइज हायर एजुकेशन। Upping the ante against Kerala Governor Arif Muhammad Khan, Higher Education Minister R. Bindu has accused him of attempting to saffronize the higher education sector in the state. So basically, there is a particular allegation against the governor of the Kerala, and now who is the governor of Kerala? Mr. Arif Muhammad Khan. Mr. Arif Muhammad Khan के अगेंस्ट में एक एलिगेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या कहीं बहुत एक रेलेवेंट एलिगेशन, जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है केरला की आर बिंदु, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट आर बिंदु जो वहाँ के हैं बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। क्या है वो स्टेटमेंट? दैट द गवर्नर ऑफ केरला ही इज ट्राइंग टू सैफ्रनाइज द higher education in the state of Kerala. Now, Dr. Bindu has also charged Mr. Khan, who is also the Chancellor of University, with sabotaging reforms that were being implemented by the state government in the sector. Now, there is another important allegation. There is another important allegation which is raised by Dr. Bindu against the Mr. Khan. Now, what is that particular allegation? That particular allegation is that Mr. Khan is trying to sabotage. Mr. Khan is trying to sabotage the reforms which were introduced by the state government of Kerala. Now, this is one important thing that we have to pay much more heed on. That he is trying to basically, Mr. Khan, who is the governor of Kerala, there have been serious allegations against him by the education minister of Kerala. And what are those allegations? First allegation is he's trying to saffronize higher education in the state of Kerala, and the second allegation was basically that he is trying to sabotage the reforms which were introduced by the Kerala government. Now, these are the two important points. These are the two important allegations which were raised by the education minister of Kerala against the governor of Kerala. And Kerala का governor कौन है? Mr. Arif Muhammad Khan. अब हम लोगों ने कल भी एक न्यूज पढ़ी थी केरला से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, कि एक ऑर्डिनेंस बेसिकली केरला गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस चाहती थी कि एक ऑर्डिनेंस इशू करें, कौन? जो आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के गवर्नर है, वो एक ऑर्डिनेंस इशू करें, बट तो केरला के गवर्नर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। एंड व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान? सो द रीजन गिवन बाय मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान वाज दैट currently we cannot bring this particular ordinance as MCC, Model Code of Conduct, is in force. That's why we cannot bring this particular ordinance at present moment. Now, next important news: microplastics found in fish in Ashtamudi Lake study. A new study had shed light on the extent of microplastic pollution in Ashtamudi Lake, a Ramsar wetland in Kollam district of Kerala, underscoring the need for continuous monitoring and addressing potential public health concerns. Now, there is an important lake. In the state of Kerala. The name of the lake is very important. आप लोगों को लेक का नाम याद रखना है. Name of the lake is Ashtamudi Lake. So you have to remember one thing in your mind, that Ashtamudi Lake is basically in Kerala. Now there has been a serious issue. There has been a serious issue with Ashtamudi Lake, and what is that issue? That there has been presence of microplastics. Microplastics have been found in the fishes of Ashtamudi Lake. जो अष्टमुदी लेक में फिश हैं, उन फिशेस के अंदर बेसिकली क्या मिला? माइक्रोप्लास्टिक्स मिला। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? जो बहुत छोटे प्लास्टिक होते हैं, वो फिश की बॉडी के अंदर मिले। नाउ दिस इज अ सीरियस कंसर्न. दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न. व्हाई? द स्टडी फाउंड माइक्रोप्लास्टिक्स इन द brackish waters lake fish, shellfish, and sediment and water. The highest percentage composition of microplastic was found in the macrofauna, with fish accounting for 19.6% and shellfish 40.9%. The study microplastic contamination in Ashtamudi Lake, India, insight from a Ramsar wetland. Now we have to focus on one thing. This particular lake, Ashtamudi Lake, was a Ramsar site in India. Now, this particular the topic, or the title of this particular study was microplastics contamination in Ashtamudi Lake, India. Insights from a Ramsar wetland. This is the main headline.
microplastics contamination in Ashtamudi Lake, India, sites from a Ramsar wetland. Basically, it is a Ramsar site. It was done by the Department of Aquatic Biology and Fisheries. So this particular study was conducted by the Department of Aquatic Biology and Fisheries, University of Kerala, with the University of Kerala. Now, microplastics are plastic. Now, what is microplastic? We should know the definition of microplastic because अब हम लोगों को माइक्रोप्लास्टिक तो पता चल गया कि जो अष्टमुदी लेक में कुछ मछलियां थी उनके अंदर हमें माइक्रोप्लास्टिक मिला, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए, हमें लेक पता है क्या होता है, हमें फिश पता है क्या होता है। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक, तो आप लोग सिर्फ एक चीज बोलेंगे, वो प्लास्टिक जो बहुत छोटी होती है ना। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है माइक्रोप्लास्टिक से? Microplastics are plastics fragments less than 5 millimeters in length. So this is one important characteristic of a microplastic, that its fragments are less than 5 millimeters. So one important feature of microplastic is that its fragments are less than 5 millimeter. Now moving on. The findings have been published at a time of growing apprehension over microplastics pollution in aquatic ecosystem across the globe. Now, why this particular study becomes very important for us? So the only reason why this particular study becomes very important for us, because there is a global threat or global apprehension about the presence of microplastics. So that's why this particular study becomes very important for us, because there is an increasing danger because of the presence of microplastic. Now, moving on. Now, before moving on, we have to हम लोगों ने एक चीज पढ़ी ना कि ये तो अष्टमुदी लेक है, बेसिकली इट इज अ रामसर साइट। तो इसे रामसर साइट डिक्लेयर कब किया गया था? द अष्टमुदी वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इन 2002. So this fact is also important for your examination, because they may ask, चलिए ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक्स मिले, ठीक है, अष्टमुदी लेक में मिले, ठीक है, बट अष्टमुदी लेक क्या है? एक रामसर साइट है। तो आप बस ये इतना बता दीजिए कि रामसर साइट डिक्लेयर कब की गई थी, किस ईयर में इसे रामसर साइट में हमने इंक्लूड किया था अष्टमुदी लेक को। तो अष्टमुदी लेक को बेसिकली हमने 2002 में रामसर साइट में इंक्लूड किया था ना। मूविंग ऑन। Congress slammed CC for failing to fulfill constitutional duty. Not important for us because this is also a political news. Why? Because there has been allegations by the Congress against the functioning of the Election Commission of India, and at this particular moment you have to understand one thing. Although Election Commission of India is a constitutional body and it is entrusted with some very important responsibilities, but we have to understand one thing. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके अगेंस्ट भी ऐसे पॉलिटिकल एक्शन, मतलब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं, और तो हमारे लिए न्यूज पॉलिटिकल न्यूज ही रहेगी, उसका रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। That's why as of this moment we are skipping this particular news. Now moving on. Being rich, no excuse to skirt medical service in rural areas, says Supreme Court judge. Military Affairs Department seeks feedback from 3 services on Agnipath scheme. As the Agnipath scheme for the recruitment of soldiers into 3 services completes 2 years, the Department of Military Affairs, headed by the Chief of Defence Staff, has sought feedback from the forces on the scheme. So basically, recently, there has been 2 years. अब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के, अग्निपथ स्कीम। तो अब जब 2 साल इस पर्टिकुलर स्कीम के कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब क्या होगा? जो मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है, बेसिकली मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जो उसके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो बेसिकली उन्होंने क्या एक फीडबैक रिपोर्ट डिमांड की है कि तीनों जो वो हैं, तीनों आर्मी नेवी, जो 3 विंग्स होती हैं, आर्मी नेवी एंड एयर फोर्सेस, बेसिकली एक फीडबैक रिपोर्ट मांगा गया है कि बेसिकली ये चीज चेक की जाएगी कि अभी तक जो ये पर्टिकुलरली स्कीम ये जो हुई थी, जो इम्प्लीमेंट हुई थी, इसका क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं। अब जो ये पर्टिकुलरली ये स्कीम है अग्निपथ स्कीम, से अनाउंस कब किया गया था? इसे हम लोगों ने बेसिकली जून 14, 2022 को अनाउंस किया था अग्निपथ स्कीम को।
अब इसमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है कि जो ये अग्निपथ स्कीम आई थी, आई कब थी? 2022, 14 जून 2022. On 14 June 2022, the government of India has announced this particular scheme. Now, one important thing that total recruitments were fixed. The total recruitments were fixed. Now, not more than 1.75 lakh recruitment, not more than 1.75 lakh recruitments can be done. Not more than 1.75 lakh recruitments can be done before 2026. So this was the capping. अब ये कैपिंग क्या थी कि बेसिकली जो अग्निपथ स्कीम 14 जनवरी 2022 को इंट्रोड्यूस की गई थी, इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद बेसिकली हम लोगों ने इनटेक जो टोटल इनटेक होगा अग्निपथ स्कीम के अंदर, उसमें कैपिंग फिक्स कर दी थी कि बेसिकली हम लोग 1.75 लाख से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे 2026 तक. तो इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है? जो डिफेंस मिलिट्री अफेयर डिपार्टमेंट है, बेसिकली उसको जो हेड करता है, कौन हेड करता है उसको? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS होता है बेसिकली आपका. वही होते हैं आपके जो मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को हेड करते हैं. उन्होंने बेसिकली जो अग्निपथ स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट इसको जो स्टार्ट करने के बाद इसको 2 साल कंप्लीट होने वाला. अब इन 2 साल की एक रिपोर्ट मांगी गई है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डिमांड की है CDS ने. अब जो ये अग्निपथ स्कीम है इसे स्टार्ट कब किया गया था? 14 जनवरी 2022. अब इस स्कीम में एक टोटल इनटेक होगा ना, पर एक कैपिंग फिक्स की गई थी. कैपिंग क्या थी? 1.75 लाख रिक्रूटमेंट्स इन 1.75 लाख रिक्रूटमेंट्स टिल 2026. ठीक है, तो इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इस न्यूज को हम लोग यहीं पे करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो देखिए अब तो पूरा पेज ही आ गया इलेक्शन वाला, सो हम लोग इसको इजीली स्किप करेंगे. Mumbai girl is the youngest Indian to scale Everest. This is very important news. A 16-year-old girl became India's youngest and world's second youngest to scale Mount Everest from the Nepal side. Now this news is very important because she has made the world record. Not the world record, because she had made the record. She became the youngest Indian to climb the Mount Everest, and the second youngest in the world, and the youngest Indian to climb Mount Everest. Now, what is the name of this girl? Kamya Karthikeyan. Kamya Karthikeyan is a student of Navy Children's School, Mumbai. She and her father, a naval officer commander S. Karthikeyan, climbed Mount Everest on Monday. Now, Miss Kamya Karthikeyan is the 16-year-old girl from Mumbai. She has climbed Mount Everest along with his father, Mr. S. Karthikeyan. She has become the second youngest girl in the world to climb Mount Everest and youngest Indian girl to climb Mount Everest. ठीक है, now moving on. ये एक important fact है, आप लोग को याद रखना है. अब इसमें एक ही चीज पूछी जा सकती है कि ये नाम क्या था. तो नाम क्या था गर्ल का? काम्या कार्तिकेयन. अब काम्या कार्तिकेयन became the youngest Indian to climb the Mount Everest. और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि इन्होंने बेसिकली नेपाल साइड से क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट. ठीक है, नेपाल साइड से माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा. 2 ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. एक तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम हम लोगों ने पढ़ लिया, काम्या कार्तिकेयन. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो क्या है? वो है बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट वो किस साइड से किया था. इन्होंने माउंट एवरेस्ट किस साइड से क्लाइम किया था? नेपाल की साइड से. ठीक है, मूविंग ऑन. This news is very important for us. Why? Because हम लोगों ने जो फर्स्ट पेज पे अभी एक न्यूज कवर की थी, मिस्टर प्रज्वल रमन्ना जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जर्मनी भाग गए. अब उनको लेकर के क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है,
हम लोग इस एडिटोरियल में वो सारी चीजें देखने वाले हैं। अब इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से, एन एब्सकॉन्डिंग एमपी, द कोलोसल फेलियर ऑफ द सिस्टम। अब आपकी कंट्री से एक अक्यूज्ड एमपी ही भाग गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज अ लॉ मेकर। इस चीज पे ना बहुत आप लोग ना बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। जो एब्सकॉन्डिंग एमपी है ना, नन अदर देन एब्सकॉन्डिंग पर्सन इज एमपी। एमपी का बेसिक काम क्या होता है? लॉ मेकर। आपकी कंट्री का जो लॉ मेकर, हमारी कंट्री में एक लॉ मेकर है प्रज्वल रमन, वो जर्मनी भाग गए और पे सीरियस एलिगेशंस हैं। अभी एलिगेशंस क्या हैं? हरासमेंट के। ठीक है ना? Hassan city in Karnataka, citadel of the Gowda family, has a proud legacy. Apart from hosting the Vaisala temples of the 11th century, it boasts of sending a prime minister and a few MPs MLAs to office, all from the same family. But now the city also carries the dubious distinction of being the site of a series of dastardly crimes committed against hapless women in the precincts. So strong is the pernicious grip of the family over the polity that none of the survivors being exploited since 2021 had the courage to speak up or lodge a complaint until the sordid drama was forced into the open with some political help. तो बेसिकली ये जो फैमिली है, गौड़ा फैमिली है, इसका प्रेजेंस जो हसन सिटी में इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो ये सारी चीजें हो रही थी, जो सारे इवेंट्स हो रहे थे, जो सारे केसेस हो रहे थे, ये सारे के सारे केसेस 2021 से हो रहे थे। बट इस पर्टिकुलर फैमिली का हसन सिटी में या कर्नाटका में इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि किसी ने भी अभी तक कंप्लेन नहीं किया, किसी भी इंसान ने या किसी भी विक्टिम ने अभी तक कंप्लेन नहीं किया। बट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प की वजह से और बहुत सारे अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से ये सारी सिचुएशन अब जाकर के सामने आ पाई है ना। द केस ऑफ मिसिंग जनता दल सेक्युलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना, हु इज allegedly at the center of this crime plot, is a telling commentary of a broken criminal justice system. Is a telling commentary of a broken criminal justice system and the shadow of politics looming large over every aspect of administrative and. After all, how can one, no matter how important he or she is, go beyond the reach of law for so many days after allegedly committing such heinous crimes? Who is responsible for this abject failure to apprehend him in time? बेसिकली अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में हुआ है ऑथर का। वो ऑब्जर्वेशन क्या है बेसिकली, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर दूसरे देश भाग गया तो ये क्या है बेसिकली, आपको क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अ कमेंट्री ऑफ अ ब्रोकन क्रिमिनल जस्टिस। बेसिकली हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना ज्यादा पुअर है, ये सारी की सारी चीजें उस पर एक कमेंट की तरह ही है। क्योंकि आपके कंट्री का एक लॉ मेकर था, ठीक है, आपकी कंट्री, एमपी कौन होता है? लॉ मेकर होता है। आपकी कंट्री का एक लॉ मेकर, हमारी ही कंट्री का एक लॉ मेकर, उसने हमारी ही कंट्री में एक बहुत ही हीनियस क्राइम कमिट किया, सेक्सुअल हरासमेंट किया वुमेन का, उनकी वीडियोस बनाई, 3-4 हजार वीडियोस रिकॉर्ड की, और उसके बाद वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस टाइम पे। और ये सब करने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जर्मनी भाग गए। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? ये सारी की सारी चीजें कमेंट्री नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक धब्बा है। ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कितना ज्यादा ब्रोकन है। इन सारी चीजों का फायदा कोई भी उठा सकता है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प तो रहा होगा ना। वरना एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके अगेंस्ट में इतने हीनियस क्राइम्स के चार्जेस हैं, वो हमारी कंट्री को छोड़ के कैसे जा सकता है? ठीक है ना, मूविंग ऑन। Various pen drives containing history scenes of the alleged rape and sexual assault against at least 8 survivors were strewn across public locations such as the Maharaja Stadium, parks and other places. On April 24th, just 2 days before the polling in Hassan, this ought to have been the first clue for police to act. The prosecution branch should have been consulted for acting upon the minefield of information leading to the accused, especially as he was known to all. The police should have sent a notice to the alleged perpetrator, Prajwal Revanna, that pending inquiry he could not leave the city, or should have gone to the court for a restraining order registering a case suo motu. Now, we have to understand one thing, and what is that thing? That there must have been some kind of help. अब क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि उसकी हेल्प की होगी मिस्टर प्रज्वल रेवन्ना की होगी? क्यों? अब मान लीजिए कि प्रज्वल रेवन्ना की जगह पे जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी जगह पे कोई नॉर्मल कॉमन मैन होता है, सारे क्राइम किए होते हैं। क्या चीजें हो चुकी होती है हमारी कंट्री में अगर किसी कॉमन मैन ने
के पास में से 100-150 सर्वाइवर्स के 2-3 हज़ार वीडियोस मिलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, शायद उनका भी घर गिरा दिया गया था। बट प्रज्वल रवन्ना के केस में क्या कि वो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बहुत सारी इम्यूनिटीज, बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज किया और वो फॉरेन कंट्री चले गए। अब इससे क्या क्या चीजें हो रही हैं, अब गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स वुमेन के लिए, वुमेन के सपोर्ट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। अब उसमें से एक बेसिकली क्या था, हम लेटेस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल क्या है, 2023 में एक स्पेशल विंटर सेशन, सॉरी एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ड्रोन दीदी, ये सारी स्कीम हम वुमेन के लिए बना रहे हैं। ड्रोन दीदी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आंगनवाड़ी में जो काम करती लोग उनके लिए स्कीम बना रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट हमारे ही कंट्री के एक लॉ मेकर ने वुमेन के अगेंस्ट और गर्ल्स के अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट के अलेज ऑफेंस, मतलब एलिगेशन है उनके अगेंस्ट में, और वो क्या किया उन्होंने, वो भाग गए दूसरे कंट्री। ये क्या चीज, प्राइमा फेसाई, ये क्या शो करता है, प्राइमा फेसाई कहीं ना कहीं आपका गिल्ट शो करता है ना, कि आप कहीं ना कहीं तो आप गलत है ना, कि आपके दिमाग में ये चीज थी अगर इस कंट्री में रहूंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए तो आप भाग गए ना दूसरे दिन। ये सारी की सारी चीजें है ना, तो ये बेसिकली हमारे जस्टिस सिस्टम पे एक सीधा सा सवाल भी खड़ा है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट लॉ मेकर जो होते हैं ना, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं, किसी भी एक कंट्री का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देयर आर टोटल 545 एमपीज, हमारी कंट्री में 545 एमपीज हैं, जो इस कंट्री की 1.45 बिलियन पीपल लोगों के लिए लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी ना, बेसिकली हम लोगों ने ऐसे डिस्कस की। अब हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। The Central Bureau of Investigation is the interface with the Interpol in a country. The state police must register their information with the CBI to reach out to Interpol for locating, apprehending any accused. But as of now, only a blue corner notice has been issued by the Interpol and not a red corner notice. तो बेसिकली अब इसमें क्या हो सकता है, एक तरीका और है कि जो स्टेट पुलिस है वो सीबीआई के पास जाए और सीबीआई के पास अपना कंप्लेन लॉन्च करेगा। फिर सीबीआई क्या करेगा, सीबीआई फिर जाकर के इंटरपोल के पास जाएगा और फिर वो लोग मिस्टर प्रज्वल रवन्ना को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और अभी तक सिर्फ ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया गया है, रेड कॉर्नर नोटिस अभी तक नहीं इशू किया गया है इंटरपोल ने, अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर वेटिंग, किस चीज का वेट कर रहे, व्हाई दे आर वेटिंग, क्यों वेट कर रहे, रीजन क्या वेट करने का, वी डोंट अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन। इंटरपोल नोटिसेस आर बेसिकली टू शेयर क्रिटिकल crime related information between member countries seeking international cooperation for tracing or apprehending fugitives in any part of the Interpol. Various kind of notices, red, yellow, blue, black, green, orange and purple. The context of this case, the blue corners notice is to collect additional information about the person's identities or activities in relation to a criminal investigation, while a red corner notice is issued for seeking the location and arrest of the person for prosecution or to serve a sentence. So basically जो blue corner notice और red corner notice क्या डिफरेंस होता है, blue corner notice जो होती है बेसिकली वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग इशू करते हैं, और जो आपका रेड कॉर्नर नोटिस होता है बेसिकली वो हम किसी भी अक्यूज की लोकेशन ट्रेस करने के लिए, उसे अरेस्ट करने के लिए करते हैं। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया गया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ नहीं। रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाना चाहिए, उसे तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। ये जो सारी चीजें निकल के आ रही है बाहर, कहीं पे एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट या एंटी पार्टी चीजें, बेसिकली बिकॉज दिस इज अ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। हमारी कंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोग क्या बोलते हैं, तो महिलाओं की पूजा करते हैं, महिला की पूजा नहीं होती। बेसिकली एक ऐसा इंसान जो पालिया मिलता है वीडियोज में, ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए। और उसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सारे इंपॉर्टेंट। अब जो सर्वाइवर जो यहाँ पे बच गए हैं उनका क्या होगा। अब मान लीजिए कि जो अक्यूज था वो अक्यूज दूसरे कंट्री में भाग गया, तो फिर जो सर्वाइवर जो विक्टिम है उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे मिलेगा। जस्टिस मिलने के लिए अक्यूज का पकड़ा जाना भी तो जरूरी है ना, बट अक्यूज को हमने अभी तक पकड़ा ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन। अब आप लोगों ने कल एक और इम्पोर्टेंट न्यूज देखी थी, कल एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो थी वो ये थी बेसिकली
या बेसिकली तीन कंट्रीज थी, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि पैलेस्टीन का स्टेटहुड जो था उसे एक्नॉलेज किया और रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट था? इसके जवाब में क्या हुआ कि इसराइल ने जो उसके इनवॉइस थे और जो एम्बेसडर थे, इनवॉइस थे, उन्होंने इन तीनों कंट्री से अपने इनवॉइस को वापस बुला लिया है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ज्यादा Now, a visit to preserve China's interest in Europe. The Chinese President Xi Jinping's first trip to Europe in 5 years earlier this month was carefully scripted as evidenced by his force of all France, Serbia, and Hungary. The first is a leading proponent of the notion of a strategic autonomy of Europe. The second is a North Atlantic Treaty Organization, non-European Union, outlier closer to Russia, and the third is a pro-Russian maverick that has blocked many resolutions, I think China and तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट की जो विजिट थी वो यूरोप हुई थी, और इस विजिट में बेसिकली वो रशिया नहीं गए, तो उसकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रशियन जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले चाइना विजिट किया था। और वो जो चाइना विजिट हुई थी बेसिकली क्या हुई थी कि 70 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, 70 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे चाइना और रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, इसीलिए वो पर्टिकुलर विजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बट हमें एक चीज और समझनी होगी, कोविड-19 के टाइम पे कैसे कैसे सीरियस एलिगेशन सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट उन्होंने रेस किए थे। बट अब सारी की सारी कंट्रीज ने, जब कोविड का इफेक्ट एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो सारी की सारी चीजें वैसे की वैसे हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट की हैं। जहाँ पे हमने कोविड के पहले चीजें ड्रॉप की थी, हमने वहीं से चीजें पिकअप। तो ये जो पूरा आर्टिकल है जो बेसिकली आपका ये इसी चीज को डील कर रहा है। अब इसके जो मिस्टर जी हैं, जो इनकी जो विजिट थी, इसके क्या मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स थे? To prevent the European Union from getting too close to the US, to avert a trade standoff with EU and foster China's standing in Europe. तो जो मिस्टर जी जिनपिंग की ये विजिट थी, इसके तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। वो तीन ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग टू क्लोज टू यूएस। बेसिकली जो मिस्टर जी हैं वो चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है और यूएस है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो कभी कम ना हो, ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या था कि to avert a trade standoff with EU, और चाइना डजंट वांट कि उसका यूरोपियन यूनियन के साथ कोई ट्रेड स्टैंड ऑफ हो। क्यों? क्योंकि चाइना के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस बहुत सारी कंट्रीज ने इम्पोज कर दिए। जैसे अमेरिका ने ही बहुत सारे जो सैंक्शंस होते हैं वो इम्पोज कर रखे हैं। बट हमें एक चीज और समझनी होगी कि कैसे पूरे वर्ल्ड ने हेल्प किया है पहले चाइना को एक वर्ल्ड फैक्ट्री बनने में। ठीक है, अब किसी भी कंट्री के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है चाइना के अलावा, क्योंकि चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी चीप। चाइना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी चीप, इसीलिए बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, आप एप्पल देख लीजिए, नाइकी देख लीजिए, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, इन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए थे वो चाइना में ही बनाए थे। क्यों? क्योंकि द लेबर वॉज चीप देयर। अब इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पे पहुंच गई, चाइना का रैपिड ग्रोथ भी हो गया। बट अब क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो चाइना पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है ना, मूविंग ऑन। He has had to do all this in the face of the fallout of the Russian invasion of Ukraine that has hardened the Western alliance against Russia, with China having to sustain some collateral damage. It has also had an indirect influence in shaping negative EU views on China's trade policy. So basically, अब चाइना के साथ भी जो रशिया के रिलेशन है, रशिया और चाइना के भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और अब क्या है कि रशिया के रिलेशन जो है वो पूरे यूरोप से, यूरोपियन कंट्री से अच्छे नहीं, पूरे वेस्ट के रिलेशन उसके खराब हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि चाइना ये चाह रहा है कि जो मान लीजिए ये हो गया आपका बेसिकली क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका यूरोपियन यूनियन, और ये हो गया आपका रशिया। ठीक है, रशिया अभी सबसे बड़ा है। ठीक है, ये यार तो हम रशिया को ठीक है, ये हो गया आपका रशिया, ये हो गया आपका चाइना, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन। अब चाइना एंड रशिया आर फ्रेंड्स, बट रशिया एंड यू आर नॉट फ्रेंड्स, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पे। क्यों? क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था ना, उसके बाद से बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं रशिया। अब इससे क्या हो रहा है कि चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप अच्छी है, बट ईयू जो है ना, वो ईयू जो है वो रशिया को पसंद नहीं कर रहा है। तो अब क्या चाह रहा है कि चाइना चाह रहा है कि इसकी जो दोस्ती है रशिया से, इसका इम्पैक्ट ना पड़े इस पे, चाइना और ईयू रिलेशंस पे। इसीलिए जो बेसिकली पूरा का पूरा काम किया जा रहा है, जो पूरा का पूरा काम किया जा रहा है, वो चाइना इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन ईयू एंड चाइना।
अब 2019 में एक अब चाइना 2019 में यूरोपियन यूनियन ने चाइना का एक डिफाइन किया था, अ पार्टनर फॉर कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर एंड अ सिस्टमिक राइवल. A skeptical Chinese Foreign Minister Wang Yi has described it as the driving to a crossing where the lights are simultaneously green, yellow, and red. But this somewhat convoluted formulation seeks to balance Europe's China policy between the economic opportunity and with the risk from China's economic policy and its national security posture. So basically 2019 में EU ने चाइना को बोला था पार्टनर फॉर कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर एंड अ सिस्टमिक राइवल. अब बेसिकली क्या हुआ कि ये एक स्टेटमेंट दिया गया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से टू डिफाइन चाइना ना. अब क्या है, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है. China had sought to develop ties with Eastern European countries through so-called 17+1 China and Eastern Europe community to serve as a gateway for markets in rich Western Europe. However, this has now fallen victim to the Ukraine war, which has strained ties between China and many of the Eastern European countries which are backing Ukraine. तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि चाइना जो है बेसिकली वो ईस्टर्न यूरोप की जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन पे उनका बहुत बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखा रहा था. बट हुआ क्या है कि जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से जो बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज थी जो बेसिकली यूक्रेन को बैक कर रही है इस वॉर में. तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जो यूक्रेन को इस वॉर में बैक कर रही है. साथ में एक इंपॉर्टेंट क्या हो गई है कि अब अगर वो यूक्रेन को बैक कर रही है और चाइना और रशिया के अच्छे रिलेशन है, बेसिकली उनका चाइना से अपने आप जो उनके रिलेशन होंगे वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे. ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोगों ने इस आर्टिकल में डील की हैं. अब आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने क्या किया कि अभी जो ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी डेट अनाउंस कर दी. डेट क्या है, 4 जुलाई. नाउ मूविंग ऑन. तो डॉक्टर्स भी केप्ट आउट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब डॉक्टर्स को बेसिकली बोला गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर रखा जाए. क्यों, इसका मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन ये है बेसिकली डॉक्टर क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. बट कुछ टाइम पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एडवोकेट्स को एक्सक्लूड कर दिया. तो उसी सेम एनालॉजी पे बेसिकली बोला गया कि हम डॉक्टर्स को भी एक्सक्लूड करेंगे. ठीक है, सो ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नहीं. अब इसमें जो इसकी सारी इंट्रिकेसीज हैं, अब उन इंट्रिकेसीज को थोड़ा सा हम बस देख लेते हैं. ठीक है, अर्लियर दिस मंथ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एडवोकेट्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. The court also indicated that in its 1995 decision that held medical professionals accountable under the act maybe need to be revisited. So basically जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि एडवोकेट्स आर नॉट लायबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 for deficiency in services. Now, at that particular moment, the court has also indicated that its 1995 decision that held medical professionals accountable under the act may need to be revisited. So there was a judgment in the year 1995. In that particular judgment, Supreme Court of India has clearly stated that medical professionals will be accountable under this particular act. Now, this particular judgment needs to be revisited, ऐसा Supreme Court का कहना था. It suggested that the definition of the term services under the act, which includes the medical sector, be re-examined. ठीक है, सो आप लोग बस इतना याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सर्विसेज की डेफिनेशन है जिसमें हम लोग अभी बेसिकली मेडिकल प्रोफेशंस के जो लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको इंक्लूड करते हैं, हमें इसे एक बार वापस से रिविजिट करने की जरूरत है. Now, Sensex Nifty hit all-time high on RBI's Bonanza Sunday. So basically, yesterday RBI has transferred rupees 2.11 lakh crore rupees 2.11 lakh crore dividend payout to government. So basically, recently RBI ने 2.11 lakh crore rupees as a dividend किसको पे किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो कल सेंसेक्स और निफ्टी थे they peaked out and they peaked at all time high. सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई क्या था, 75,418. 75,408. निफ्टी का 50 का क्या इंडेक्स था, 22,993 पॉइंट. इट वाज द ऑल टाइम हाई. अब दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया बेसिकली अपने एसेट्स को कुछ एसेट्स को मोनेटाइज करने वाली है और इन एसेट्स को मोनेटाइज करके बेसिकली नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को
अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे, ठीक है ना। मूविंग ऑन। अब आप सब लोगों को पता है कि आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब चिप इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है कि इसी के कॉन्टेक्स्ट में साउथ कोरिया ने क्या किया, बेसिकली $19 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया टू बूस्ट चिप इंडस्ट्री। $19 बिलियन टू बूस्ट चिप इंडस्ट्री। अब in a tit for tat move, Russia passes decree to allow seizures of assets belonging to US. Russian President Vladimir Putin on Thursday signed a decree allowing the confiscation of assets inside Russian belongings to the United States and compensate those hit by Western sanctions against Moscow. तो बेसिकली आप इस चीज को समझ लीजिए कि इस सिंपली रिटन इन अ टिट फॉर टैट मूव। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ ऐसा आपने जैसा हमारे साथ किया हम भी आपके साथ वैसे करेंगे। In a tit for tat move, Russia passes decree to allow seizure of assets belonging to US. Russian President Vladimir Putin on Thursday signed a decree allowing the confiscation of Russia. तो बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ टाइम पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज थी और यूएस था उसने क्या किया था कि बहुत सारे सैंक्शंस कर दिए थे रशिया पर। अब उन सैंक्शन से क्या हो रहा था, उन सैंक्शन से क्या हो रहा था बेसिकली भी रशियन बिलियनियर्स जो रशिया के जितने भी असेट्स इन सारे फॉरेन कंट्रीज में थे तो कन्फिस्केट कर लिया गया। अब यूएस में जो ये असेट्स बेसिकली कन्फिस्केट किए गए थे, इसका क्या होना था, इसका बेसिकली होना था कि वो जितने भी असेट्स कन्फिस्केट किए उनको मतलब सेल ऑफ करके यूक्रेन को एड प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट अब जो ये रशियन कंपनीज हैं जिनके असेट्स अलग अलग कंट्रीज में थे, इसका क्या हुआ, इन सारी कंपनीज का तो नुकसान हो गया जो रशिया की कंपनी थी। तो अब रशिया ने क्या किया कि रशिया ने ये बोला है कि हम वेस्ट की और यूएस की जितनी भी मतलब यूएस के जितने भी असेट्स हमारी कंट्री में हम सबको सीज करेंगे और उनको हम बेचेंगे और उससे हमें जो पैसा मिलेगा, उससे हमें जो मनी मिलेगा, हम उस मनी को यूज करेंगे कॉम्पनसेट करने के लिए उन कंपनीज को जिनके एसेट वेस्ट और यूएस से। ठीक है, इसको बहुत ही आराम से समझिएगा कि क्या हुआ है कि वेस्ट ने और यूएस ने मिलकर रशिया के बहुत सारे जो एसेट थे उनको फ्रीज कर दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे। तो रशियन कंपनीज को बहुत सारा लॉस हुआ था इस वजह से। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी यूएस की कंपनीज के एसेट्स होंगे हमारी कंपनी सबको सीज करेंगे, उनको बेचेंगे और उससे जो पैसा हमें मिलेगा उससे हम कॉम्पनसेशन देंगे उन कंपनीज को जिनका लॉस हुआ है सैंक्शंस की वजह से, उनके एसेट्स जिनके फ्रीज किए हैं। ठीक है ना, मूविंग ऑन। कोर्स में Priti Smita wins world youth 40 kg title with world record. 15-year-old Priti Smita Bhoi became the first weightlifter from the country to win a title with a clean and jerk world record. Another important news कर देने वाली न्यूज है ये। 3-year-old एथलीट हैं, उड़ीसा की हैं, ठीक है, का नाम है प्रीति स्मिता। Now she became the first weightlifter from the country. She became the first weightlifter from the country to win a title with a clean and jerk world record. So basically ये सिर्फ पहली वेट लिफ्टर कंट्री की नहीं है जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। किस कैटेगरी में, क्लीन एंड जर्क में, एंड बेसिकली और किस कैटेगरी में, 40 kg वुमेन 40 kg कैटेगरी में। नाउ मूविंग ऑन। फिर देखिए फिर जीत के रह गए ये लोग ट्रॉफी नहीं। हाँ, दिनेश कार्तिक ने अनाउंसमेंट अपना अनाउंस सॉरी दिनेश कार्तिक ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है कि अब वो इस बार से 2024 वाज हिज लास्ट आईपीएल सीजन। आफ्टर दिस 2024 सीजन ही वोंट प्ले आईपीएल। अब वो प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, so with this we have completed the video analysis of 24th of May 2024। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है किसी तरीके का फिलोसॉफिकल ओपिनियन वाइज और फैक्ट वाइज, डू पंच इन योर क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चंस जब तक नहीं ऐसा है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछिएगा और अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों को तो प्लीज तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपने जो भी क्वेरीज है उनको पंचिंग करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एनालिसिस।